we began this chapter. Uh, as I told that this chapter is divided into three parts. इसको हमने तीन parts में divide कर रखा है. The first one is called as the Satyagraha phase. The second one is non-cooperation movement, and the third one will be civil disobedience. And in our past class, we had already discussed what was the condition of India after the First World War. Then in 1915, Gandhi ji came back. When he came back from South Africa, at that particular period, the condition of India was not at all good economically. The prices were very high. There were forced recruitment everywhere. The peasants, the farmers, the mill workers, everyone was in trouble. Therefore, Gandhiji decided to launch Satyagraha. Now, Satyagraha means Satya ke liye Agraha, fight for the justice, for truth. And according to Gandhiji, if a person is fighting for truth and he is non-violent, then definitely he is going to win. Keeping this in view, he had organized three Satyagrahas, 1916, 17, 18, that is in Champaran, Kheda and Ahmedabad. Giving a befitting reply to Satyagraha, the Rowlatt Act was implemented. Even against the Rowlatt Act, Satyagraha was organized, but it led to the massacre of Jallianwala Bagh. Satyagraha was called off. Then Gandhiji, along with the Muslim leaders, started the non-cooperation Satyagraha Khilafat movement. It was first of all accepted in Kolkata. It was adopted in Nagpur, and then it was implemented in different areas, city, then rural areas, plantations and tribal area. But NCM was not at all a success because हर एक इंसान जो है वो उसको अपने लिए ले रहा था. It was not considered for the freedom. Ultimately, due to an abrupt violence, एक violence था which happened in Chauri Chaura, Uttar Pradesh, non-cooperation movement was called off. ये हम लोगों ने जो है we have already discussed in our last class. Now comes the next phase. अब हुआ क्या during this? The Congress, मतलब ये जो पूरा हमारा उस वक्त चल रहा था बेटा, this all was done under one what we call as an organization. It's not a political party. मैंने आपको political parties के अंदर भी ये बताया था that political parties हमारे form हुए थे only later stages में. At that time it was called as an organization which was started by Annie Besant. And Annie Besant जो थे उनके साथ में start हुआ था. And this was called as Indian National Congress. इसमें आपके जितने भी rich people थे, the people who were influencing, ये सब जो है they were the members. Within INC there were number of people who used to, जो लोग जो है आपस में उनकी भी अपनी मतभेद होती थी. They did not belong to any political parties, but there were different strands, different opinions. And ये opinion जो था between the Indian National Congress, वो conflict हो रहा था. There were three kinds of people. एक जो believe करते थे that Indian National Congress should go for elections. उस वक्त में मद्रास प्रेसिडेंसी में इलेक्शंस थे. उस जगह को छोड़कर बाकी सब जगहों पे इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया था. कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस होते थे उन दिनों में, प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो बॉयकॉट किया था. तो उनका मानना था, मतलब वन ग्रुप, उनका मानना था दैट द
Congress should fight the election. The people of India should fight the elections, get the power, and expand their control. इनको हम लोग बोलते थे, they were called as moderates. Then सेकेंड ग्रुप ऐसा था जिसको हम कहते हैं रैडिकल्स, जिनको हम बोलते हैं रैडिकल्स. नाउ ये जो रैडिकल्स थे, इनका नाम ये जो थे, दे वांटेड दैट देयर शुड बी एग्रेसिव, बिल्कुल एग्रेशन 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 होकर द पीपल शुड फाइट, दे शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट. और ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सबको हम रैडिकल ग्रुप में मानते थे. वेरएज आपके मोतीलाल नेहरू, सी आर राजगोपालाचारी, इन सबको हम मॉडरेट्स में मानते थे. और इन्होंने इनफैक्ट एक पार्टी स्टार्ट की थी विद इन कांग्रेस जिसका नाम था स्वराज पार्टी. द नेम ऑफ द पार्टी वॉज स्वराज. उनका मानना था दैट दे शुड फाइट द इलेक्शंस, जो आपके प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं उनमें दे शुड टेक द पार्टिसिपेशन. Whereas जवाहरलाल नेहरू और यंग लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना था कि देयर शुड बी नथिंग लाइक इलेक्शन वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इंडियंस और हमें एग्रेसिव प्रोटेस्ट करना चाहिए. There was again a third group also. There was also a third group जिसका नाम था extremist, moderates, radicals and extremist. And जो extremist थे, ये तो मानते थे कि even if they have to take the arms, they should take. और इनको हम in a synonym हम लोग बोलते हैं लाल बाल पाल. लाल बाल पाल इनको हम बोलते हैं. That is लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बीसी पाल. ये तीन ऐसे थे. तो within the Congress only there were people who believed to be in the government. Secondly, those who wanted aggressive oppositions, and the third one even more aggression. ये आपस में थे एंड दे वर फीलिंग कि जो बार बार मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी करते हैं, मूवमेंट होता है फिर रुक जाता है, फिर मूवमेंट होता है फिर रुक जाता है, दे वर नॉट एग्रीइंग. सो जो गांधी जी जिस तरीके का मूवमेंट चाहते थे दैट वाज नॉट हैपनिंग. उनको लग रहा था कि ये बीच बीच में जो मूवमेंट्स रुकते हैं इसकी वजह से देयर वुड बी अ गैप. एंड एट दैट पीरियड, दैट इज 1929, उस पीरियड में व्हाट हैपेंड इज द गवर्नमेंट ने देखा, दैट इज द ब्रिटिश, उस वक्त तो ब्रिटिश ही हमारा गवर्नमेंट था. तो जब गवर्नमेंट ने देखा दैट द इंडियंस आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल ट्राई टू गिव यू मोर कंट्रोल. हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं. डोमिनियन स्टेटस मतलब डोमिनेशन ऑफ द इंडियंस ऑन द गवर्नमेंट. लेकिन उसके लिए वी विल बी सेटिंग अप अ कमीशन. हम एक कमीशन सेटअप करेंगे जिसके अंदर जो है यू विल बी हैविंग द, मतलब कि वी विल हैव द पीपल, एंड उसके थ्रू हम आपका जो है स्टेटस को वी विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया. द कमीशंस नेम वाज साइमन कमीशन. ये उस वक्त जो लॉर्ड इरविन थे, he had proposed this. तो जब वो कमीशन सेटअप हुआ अंडर जॉन साइमन, अंडर सर जॉन साइमन, एंड व्हेन द कमीशन केम टू इंडिया, तो द इंडियंस वर, मतलब कि दे वर वेरी मच पेन्ड, दे वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उस कमीशन के अंदर नॉट इवन अ सिंगल वाज इंडियन. कमीशन जो स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसको उन्होंने बना तो दिया, लेकिन उसमें नीदर एक इंडियन पॉलिसी के लिए एक भी इंडियन नहीं था. सो व्हेन दिस कमीशन केम टू इंडिया, द इंडियंस, इवन द मुस्लिम लीग जो बाद में हमसे अलग हो गई थी, इवन दे सपोर्टेड
and this commission was received with the greetings, go back Simon. जब ये मतलब कि कमीशन आया तो इसको जो है सब लोगों ने जो है अपोज किया with the slogan what we call as go back slogan. And in this manner there was no concrete solutions. Ultimately, December 1929, Jawaharlal Nehru was giving his speech in the Congress session, Lahore. And at that time, he said that on 26 January, on 26 January 1930, India will be declared as independent. 26 जनवरी 1930 को इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट एंड दैट इज व्हाई हमें 1930 में आज़ादी तो नहीं मिली थी, लेकिन कीपिंग इन व्यू हिज रिस्पेक्ट ऑफ हिज वर्ड्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेटअप हुआ था तो उस वक्त में वी अडॉप्टेड 26 जनवरी एज अवर रिपब्लिक डे, और तभी हम लोग जो है रिपब्लिक डे उस दिन मनाते हैं. दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे ऑन दैट डे. तो ही सेड दैट अब हमें जो है वी डोंट वांट एनी डोमिनियन स्टेटस, वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें चाहिए कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज. ये जो पूर्ण स्वराज था ना बेटा, इससे पहले इंडियंस जो थे देवर ओनली, वो लोग जो है सिर्फ एक इस बात पर लड़ाई कर रहे थे कि दे वांटेड मोर पावर इन द गवर्नमेंट, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा दैट वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, द ब्रिटिश शुड गो आउट फ्रॉम आवर कंट्री. सो दिस वाज, ये उन्होंने प्लेज लिया, पीपल वर टू टेक अ प्लेज to struggle for the complete independence, and thus the fight for Purna Swaraj started. That was the same period, that is December 1920, 29 and 30. Now we could not get the independence on that day, but एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो ये था दैट इंडियंस वर टैक्स्ड फॉर सॉल्ट. जो हम नमक खाते हैं उस पर टैक्स किया गया. नाउ टैक्स जो था दैट वाज टू मच. नमक एक बेसिक चीज है, इट हैज टू बी पुट इन ऑल द फूड एंड इट इज यूज बाय द रिच एंड पुअर. ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको रिच ज्यादा यूज करेगा और पुअर जो है वो कम यूज करेगा. इट इज यूज बाय एवरीवन. एंड देन द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट. उन पे ये मतलब कि लॉ था दैट वो लोग जो है सॉल्ट नहीं करेंगे. सॉल्ट सिर्फ फॉरेन के जो कंपनीज हैं वही करेगा, एंड वो इतना टैक्स होता था कि उसे खरीदने के लिए इंडियंस के पास पैसा नहीं होता था. गांधी जी सॉ दिस सॉल्ट एज अ सिंबल. ये पेपर में ऐसे ही आता है बेटा. गांधी जी सॉ दिस एज अ सिंबल. उनको ये एक मुद्दा लगा. उनको लगा कि इफ आई टेक दिस एज अ सिंबल तो मेरे साथ में लोग जुड़ेंगे. देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन, और उसमें जो है 11 डिमांड्स उन्होंने रखी. ही केप्ट 11 डिमांड्स, लेकिन सबसे ऊपर का जो डिमांड था वो था अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट लॉ. दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स जो हमारे ऊपर लगा था उसको, क्योंकि दैट वुड बी. सेकेंडली उन्होंने जो है देयर वर ऑल्सो अदर डिमांड्स लाइक कांग्रेस जो था उसको ब्रिटिश जो पसंद नहीं करती थी, गांधी जी को पसंद नहीं करती थी, तो देयर वर मेनी रेस्ट्रिक्शंस. सो उनको रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का भी था, लेकिन सबसे ऊपर जो है द डिमांड वाज फॉर द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. एंड गांधी जी सेड दैट इफ हिज डिमांड इज नॉट मेट, अगर उनकी जो ये डिमांड है पूरी नहीं होगी तो ही विल स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस. अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट नाउ इट वाज सिविल डिसोबीडियंस.
Now, what was civil disobedience? Civil disobedience is जहां आपके जो है लॉ को भी तोड़ा जाता है. द सिविलियंस यानी कि जो कॉमन पीपल, द पीपल हु आर इन द हु आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वो लोग लॉ नहीं फॉलो करेंगे. दे विल ब्रेक द लॉ. नाउ when he went for a salt march, the iconic salt march, उन्होंने जो है अपना मार्च स्टार्ट किया. दैट इज फ्रॉम साबरमती टू डांडी. साबरमती टू डांडी. जब वो साबरमती से निकले थे तो 70 वॉलंटियर्स थे उनके साथ. उनके साथ थे 70 वॉलंटियर्स. लेकिन जब वो वापस आए, दैट इज व्हेन ही केम बैक, 11th मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया था एंड अप्रैल में. बट जब वो वापस आए तो देवर मोर देन 1000 पीपल. ही वेंट देयर. वहां उन्होंने डांडी में जो समुद्र है, बीच, वहां गए. ही टुक द वाटर. उसको जस्ट आइकॉनिक के लिए, सिंबल के लिए उसको बॉयल किया और उन्होंने कहा कि सॉल्ट पर सबका हक होता है. एंड इन दिस मैनर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ. उन्होंने कहा मैं तो करूंगा. इसके बाद पूरे देश में जहां जहां पर भी सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स थे, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट. जो दुकान होती थी ब्रिटिश की, उसके आगे लोग ऐसे एक प्ले कार्ड रखकर खड़े हो जाते थे. दे वुड बी पिकेटिंग. उसको हम बोलते हैं पिकेटिंग. दैट्स कॉल्ड एज पिकेटिंग. दे विल स्टैंड. दे विल नॉट मेक एनी वायलेंस वहां पर. एंड मेनी ऑफ द लॉज जो है उनको तोड़ना शुरू कर दिया. लाइक फॉरेस्ट लॉ जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया. ट्राइबल्स ने अपना लॉ कर दिया. एवरीवन जो है दे स्टार्टेड लुकिंग एट दिस. ये इतना सारा होने के लेकर जो आपके इरविन थे, he called upon Gandhi ji and he said he is ready to negotiate, and that is called as Gandhi Irwin Pact. उसको हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं. गांधी जी ने तो उसमें अपना डिमांड लिखा ही हुआ था, दैट इज अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट लॉ. एंड कांग्रेस जिसको इलीगल कहा गया था, इट शुड बी लीगलाइज्ड. ऑल द प्रिजनर्स, जो लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, दे शुड बी फ्रीड. ये सारा उन्होंने दिया था. उसके बदले इरविन ने उन्हें कहा कि यू शुड गो फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दैट इज इन लंदन. लंदन में होगा. यू शुड गो देयर एंड वहां पर आप जाकर जो हो यू विल मतलब कि नेगोशिएट अबाउट इंडियाज फ्यूचर. बट व्हेन गांधी जी वेंट देयर, he was disappointed because there he had a tiff with Dr. B.R. Ambedkar. उनकी वहां पर एक छोटा सा मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो गया था. The British always believed in the policy of divide and rule. वो तो बिलीव करते थे डिवाइड एंड रूल में. So the British were supporting Dr. Ambedkar. But Gandhi ji जो थे, he did not want any clash in London. So he came back. Round table was a failure. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो एक फेलियर हो गया. बट सिविल डिसोबीडियंस जो था, दैट वाज देयर वर पीपल हु टुक पार्टिसिपेशन, लाइक रिच पीजेंट्स जो थे, यानी कि जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने जो है दे वांटेड टू टेक पार्टिसिपेशन. बिजनेस क्लास वांटेड टू टेक पार्टिसिपेशन. और एक सबसे बड़ी खूबी सिविल डिसोबीडियंस का क्या था, it also witnessed the participation of women. एनसीएम में आपकी विमेन पार्टिसिपेशन कम थी, लेकिन इसके अंदर आपके जो है विमेन पार्टिसिपेशन वाज आल्सो देयर. सो देयर वाज पार्टिसिपेशन बाय एवरीवन. द peasants also participated, the business class also, the rich people, the rich, the poor, the women, सब ने इसमें participate किया. And जगह जगह पर at different places different kinds of laws were broken. इसको देखकर गांधी जी, then there were many leaders जिनको अरेस्ट कर लिया गया था. एक और थे पेशावर में
जिनका नाम था गफार खान, अब्दुल गफार खान. ही वॉज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी. उनको बुलाया जाता है फ्रंटियर गांधी. दिस इज बिकॉज ही वॉज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गांधी जी. वो गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे. इनफैक्ट जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था ना, उस वक्त में ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन. लेकिन जिस एरिया में वो रहते थे दैट वेंट टू पाकिस्तान एंड ही हैड टू शिफ्ट टू पाकिस्तान. मतलब वो जिस एरिया में रहते थे वो पाकिस्तान चला गया था. सो दैट इज व्हाई he was also arrested. There were many leaders who were arrested. कांग्रेस को इलीगल बोल दिया गया था. एक तरफ सारे के सारे जो सिविल डिसोबीडियंस यानी कि लॉ जो है उसको तोड़े जा रहे थे, दूसरी जगह पर जो गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश थी, दे वर अरेस्टिंग दीज लीडर्स. गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. देयरफॉर धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली सिविल डिसोबीडियंस भी आपका जो है डिड नॉट वर्क आउट. नाउ आपके पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मतलब कि वो क्यों नहीं हुआ, व्हाई डिड नॉट इट वर्क आउट. दैट इज बिकॉज जितने भी ग्रुप्स ने उसमें इन्वॉल्व हुए थे, लाइक मुस्लिम्स हुए थे, विमेन हुए थे, देन आपके बिजनेसमैन हुए थे. एक तरफ बिजनेसमैन हुए, सेकंड आपके मुस्लिम्स हुए, थर्ड आपके विमेन हुए. ये पेपर में आता क्वेश्चन 5 मार्क्स का. नाउ फॉर द बिजनेसमैन, उनके लिए था कि उनको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है उसके रूल्स इजी हो जाए. उनके ऊपर जो ट्रेड टैक्सेस थे दैट शुड बी रिमूव्ड. ये उनका मतलब कि दैट वाज देयर डिमांड. इनफैक्ट उन्होंने उस वक्त they had also made an association which was called as FICCI and IICC. They even made 2 institutions. लेकिन they did not want the participation of the poor peasants. वो लोग पुअर पीजेंट्स की पार्टिसिपेशन को पसंद नहीं कर रहे थे. एंड इसी वजह से जो पुअर पीजेंट्स थे या पुअर बिजनेसमैन थे, दे वर एलियनेटेड. एंड जैसा वो चाहते थे, अब वो अपना काम तो बंद नहीं कर सकते थे. द बिजनेस कैन नॉट बी शट डाउन. अभी हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन में फॉर हाउ मेनी डेज द बिजनेस कैन बी शट डाउन. और सिविल डिसोबीडियंस से उनका बिजनेस शट हो जाता था, तो उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया. सेकेंड आपके मुस्लिम्स. नाउ द मुस्लिम्स हैड पार्टिसिपेटेड इन नंबर. उन्होंने तो सपोर्ट भी किया था मुस्लिम्स ने. They even participated in the non-cooperation movement also. But इंडिया में हिंदू राज मतलब कि जो हिंदूज थे, उन्होंने हिंदू महासभा के जो सेक्रेटरी थे जयकर, उन्होंने कहा that they did not want the participation of Muslims. Slowly Muslims भी alienate हो गए. In fact in 1930 द मुस्लिम्स, उस वक्त में जो मुस्लिम के लीडर थे, मतलब कांग्रेस जैसे हमारे लीडर्स होते हैं वो चेंज ऑन होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी चेंज होते हैं. तो उस वक्त में जो उनके लीडर थे, दे हैड डिमांडेड अ सेपरेट पाकिस्तान 1930 में ही. सर इकबाल, इवन एट दैट टाइम दे हैड डिमांडेड कि दे वांटेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी कम हो गया. तो पुअर पीपल वांटेड टू पार्टिसिपेट, मिल वर्कर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट. वो लोग पार्टिसिपेट भी करते थे. दे इवन यूज टू वियर द गांधी टोपी. लेकिन जो कांग्रेस के अंदर रिच पीपल होते थे, दे डिड नॉट लाइक द पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर. देन वन मोर प्रॉब्लम वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, ही हैड ऑर्गेनाइज्ड जितने भी आपके
सेक्लूडेड क्लास होती है, उनको उन्होंने एक ग्रुप में बना था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसको बाद में हमने शेड्यूल्ड कास्ट का नाम दिया था। एंड उनका मानना था कि जो दलित्स होते हैं दे आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस ही वांटेड दैट जो दलित्स हैं दे शुड गेट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब एक पूरी जगह उनके लिए होनी चाहिए जहां सिर्फ उन्हीं का नेता होगा, जहां पर सिर्फ उनके ही लोग जो हैं दे विल गिव द वोट्स। लेकिन गांधी जी वॉज नॉट अग्रीइंग टू दिस। गांधी जी का मानना था कि अगर हम सबको अलग अलग कर देंगे, मुस्लिम्स को अलग, दलित्स को अलग, तो इस तरीके से तो वी विल बी डिवाइडेड, एंड दैट इज व्हाई ही डिड नॉट वांट डिवीजन। तो गांधी जी ने क्या किया, और इसी वजह से जब लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अड़ गए थे। He said that first of all you will be making a separate electorate for scheduled caste, then only मैं मतलब कि I'll be, क्योंकि उसमें सभी लीडर्स को बुलाया जाता है। But Gandhi ji did not agree. When he came back, so he tried to convince the people of India that they should not believe in casteism. He went to the, वो जो है वहां पर गए जहां हरिजन्स रहते थे, दलित्स रहते थे, और उन्होंने दलित्स को एक नया नाम दिया, हरिजन, द पीपल ऑफ द गॉड। ही सेड दैट ये जो लोग हैं दे आर ऑल गॉड्स पीपल, एंड कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो खुद ही यूज टू स्वीप, मतलब खुद वो झाड़ू पोंछा लगाते थे, वो हर काम करते थे जो हरिजन्स करते हैं, और वो लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे दैट नो वर्क इज स्मॉल और बिग। लेकिन जो रिच पीपल थे या फिर जो हायर क्लास के लोग थे, ब्राह्मण्स वगैरह, दे वर नॉट अग्रीइंग टू दिस। ड्यू टू दिस the participation of Dalits was also not that much. Now, how did Dalit come with us? जब अंबेडकर जी अड़ गए that make a separate electorate, तो गांधी जी भी अड़ गए। He went into strike, hunger strike, भूख हड़ताल, fast unto death. अल्टीमेटली बी आर अम्बेडकर को उनकी बात माननी पड़ी, एंड इन पुणे, दैट इज पूना पैक्ट, सितंबर 1932, इट वाज अग्रीड दैट द दलित्स विल सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड जब आज़ाद होंगे तो द लेजिस्लेचर काउंसिल्स अलग से दलित्स के लिए भी दिया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर देम, एंड दस दिस केम। लेकिन दो गांधी जी अग्रीड, लेकिन जो मेन फ्रेम में रिच पीपल थे या फिर जो आपके हायर क्लास के लोग होते थे, दे वर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, इसीलिए इनका पार्टिसिपेशन भी कम था। नेक्स्ट वाज द विमेन। विमेन पार्टिसिपेटेड इन नंबर्स, खासकर जो रूरल एरियाज के अंदर रिच और जो ब्राह्मण, जो हायर मतलब की क्लास की लेडीज होती थी, दे ऑल पार्टिसिपेटेड, दे इवन वेंट टू जेल। बट गांधी जी और ऐसे ही बड़े सारे लोगों का मानना था द विमेन आर नॉट सपोज टू कम इनटू पॉलिटिक्स। उनका मानना था लड़कियां चूल्हा चौकी करेंगी तो वो ज्यादा ठीक है, दैट्स बेटर, दे आर गुड मदर, दे शुड बी गुड मदर, दे शुड लुक आफ्टर देयर फैमिली एंड हर्थ, हर्थ मतलब अंगीठी, उन्हें चूल्हा चौकी करना चाहिए, दे आर सिंबॉलिक, उन्हें हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए, बट दे शुड नॉट कम इनटू द पॉलिटिक्स। इस वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन भी कम हो गया, एंड दैट इज व्हाई सिविल डिसोबीडियंस कुड आल्सो नॉट गेट दैट इफेक्ट जो गांधी जी चाहते थे। सो दीज वर द थ्री मूवमेंट्स। फर्स्ट इज सत्याग्रह, second one is आपका NCM, and the third one is DCB, that is civil disobedience. तो then ultimately how did it come?
कैसे हुआ सब कुछ, हाउ एवरीथिंग केम टू अ प्रॉपर मैनर. नाउ व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड. नीदर जो आपका सत्याग्रह था दैट वाज सक्सेसफुल, नॉर आपका एनसीएम, नॉर सिविल डिसोबीडियंस. So then what happened, how did this shape up, how did we get the freedom ultimately? Gandhi ji wanted only one thing, and that was everyone should be united, whether it is Hindu, Muslim, rich, poor, high class, lower class, women, men, सबको इकट्ठा होकर, यूनिटी होकर, we have to fight for the rights, togetherness, national togetherness. And now what happened, एक तरफ these movements were going, and on another time there were people, that is आपके पेंटर्स, राइटर्स, ये लोग जो है दे यूज टू सिंबलाइज इंडिया. लाइक वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. दिस वॉज रिटन इन आनंद मठ. आनंद मठ एक बुक है, उसके अंदर लिखा गया था. एंड दिस वॉज इवन यूज्ड जब आपके स्वराज के लिए बंगाल में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त में दे इवन यूज टू वंदे मातरम, जो हम गाते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने यूज किया था. देन देयर वॉज कजन रविंद्रनाथ के, अभिनंद्रनाथ टैगोर. प्लीज याद रखना, अभिनंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर अलग है, अभिनंद्रनाथ टैगोर अलग है. सो ही पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता, काम, डिवाइन, स्पिरिचुअल. इसको बाद में अलग अलग लोगों ने पेंट किया था दोबारा से, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था, बंकिम चंद्र ने भी किया था. बट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन एज एन एलिगोरी, अ सिंबल, एन इमेज, भारत को प्रेजेंट करते हुए. फर्स्ट इट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र, पेंटेड बाय अभिनंद्रनाथ टैगोर, देन बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसे पेंट किया था, मतलब अलग अलग लोगों ने किया. Then Bankim Chandra Chatterjee also wrote Vande Mataram, which was used in Madras. That is उस वक्त में जो आपका चेन्नई, अभी तो हम चेन्नई बोलते हैं लेकिन वो पूरा मद्रास है. That is आपका केरला का पार्ट, then तमिलनाडु, then आंध्र प्रदेश, इन सबको मिलाकर आपका मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था. वहां पर एक इंसान थे जिनका नाम था नटेशन शास्त्री. His name was नटेशन शास्त्री. उन्होंने इंडियन फोकलोर्स को तमिल में जो है मतलब सॉन्ग्स वगैरह लिखे, आइडेंटिफाइंग द नेशनल आइडेंटिटी, लोगों को जो है उकसाते हुए मेनी ऑफ द मतलब की चीज़ों को जो है लिया उन्होंने. देन फ्लैग, जो हमारा फ्लैग है, द इंडियन फ्लैग, ये फ्लैग पहले ऐसा नहीं था. इट वॉज रेड येलो, ये जो था पहले रेड येलो एंड वाइट ऐसे कलर में था. इसको 2 बार 3 बार डिजाइन किया गया था. One was which was used during the Swadeshi movement. Later on in 32 Gandhi ji redesigned it. पहले इसके अंदर था आपका चरखा. बट चरखा जो है अगर हम मतलब कि उसको देखते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं तो दोनों तरफ से एक जैसा नहीं लगता, दूसरी तरफ वो उल्टा लगता है. सो लेटर ऑन इट वॉज रीडिजाइन विथ व्हाट अभी हमारे पास है, अशोक चक्र. बिकॉज आप दोनों तरफ से देखोगे तो अशोक चक्र विल लुक द सेम. सो फ्लैग, जो फ्लैग था पहले, जो फ्लैग था विच कंसिस्टेड ऑफ अ जो आपका मून पाकिस्तान के लिए, स्टार और इंडिया का, इन सबको लेकर एक बना हुआ था. एंड द पीपल यूज टू कैरी इट during the Swadeshi movement. Later on it was redesigned. So flag, then the songs, the folklores, भारत माता का इमेज, इस तरीके से कई लोगों ने जो है दे स्टार्टेड क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ यूनिटी. लोगों ने बोला इंडिया वॉज अ वन जिसने सबसे पहले मैथमेटिक्स में जीरो एंड डेसिमल जो है इंट्रोड्यूस किया था.
इट इज इंडिया विच वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन बर्ड. हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, साइंस है, इनफैक्ट जो सर्जरी हम कहते हैं, दैट वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया. सो ऑल दीज इंटरप्रिटेशन जो है दैट वॉज डन, सब कुछ किया गया, एंड पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग देम टू द सॉइल. खुद को वो इंडिया से रिलेट करने लगे. इट वॉज नॉट नाउ द फाइट ऑफ जमींदार्स और द फाइट ऑफ लॉयर्स और द फाइट ऑफ बिजनेसमैन. नाउ इट बिकेम द फाइट फॉर इंडियंस. And ultimately, when everyone started uniting, everyone started giving their contribution. So the British had no other option but to leave India. आपका, even though this जो quit India movement है, this is not there in your book, but yes, this is also one of the important period of India जो आपका 42 में हुआ था, when गांधी जी इन बॉम्बे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, उन्होंने क्विट इंडिया जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था. एंड गांधी जी सेड डू और डाई, करो या मरो. एंड पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशंस विद द सॉन्ग, स्लोगन, सब कुछ. मतलब जो पहले हुआ था एनसीएम में, सिविल डिसोबीडियंस में, सब इसमें ज्वाइन हुआ. इवन जयप्रकाश नारायण जो बाद में हमारे, ही वॉज वन ऑफ द की लीडर्स, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने इसमें जो है लिया था. एंड ब्रिटिश ने कोशिश तो बहुत किया था इस मूवमेंट को सप्रेस करने का, बट 42, 43, 44, 45, तब तक they had the complete, Indians had the complete control over themselves. They started protesting by all the manner, जिस तरीके से वो कर सकते थे. And ultimately it was in 45 when the British decided that they have to leave India. Natural है, it doesn't, they were ruling us for so many years. So it was not a one day decision. It had to be put on the papers. उस वक्त हमारे लास्ट जो हमारे वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबैटन, he was very supportive. Then it took all the procedure. Then at that time we had even started forming the Constituent Assembly, and it was having the members both from India and Pakistan. तो उस वक्त में आपके two nations theory that started. जो मुस्लिम लीग था, it was the one who had proposed two nation theory, that जो areas आपके मुस्लिम dominated है, that should go to the Muslim League, and that would be called as Pakistan. Gandhi ji was reluctant. He did not want this partition to happen, but looking at the violence, looking at the hatred that was there, इन सबको देखते हुए he agreed to the two nation theory. And ultimately in 46 when this theory was propounded, इसको accept कर लिया गया. Then it took around 1 year for British to move from India, and ultimately on 15th August 1947, that's 14th हम लोग जो है पाकिस्तान का मनाते हैं, क्योंकि उनको अलग कर दिया गया था. The areas of Pakistan, पंजाब, प्रेजेंट पंजाब में जो एरिया अब पाकिस्तान में है, अमृतसर, लाहौर, एंड देन जो अब बांग्लादेश है, पार्ट्स ऑफ कोलकाता, इनको पाकिस्तान का नेम दे दिया गया. दे हैड देयर इंडिपेंडेंस 14th, एंड हम लोगों का जो है 14th रात को. दैट इज उससे पहले नेहरू जी gave his very famous speech, that is Tryst with Destiny, and on 14th midnight, that is 15th morning, we received our independence. So this is how the story of independence unfolds. मतलब कि एक एक करके ये ऐसे अलग अलग होके अनफोल्ड होता है, राइट? मतलब पहले हमारा जो है वर्ल्ड वॉर 1, its results, consequence, then how the people were tortured in India, then how Gandhi ji, when he came back in 1915 January, how he unfolded satyagraha, the 3 places of satyagraha, Rowlatt Act,
against Satyagraha. Then one more Satyagraha against Rowlatt Act, implementation of martial law, the infamous Jallianwala Bagh, and following violence, withdrawal of Satyagraha 1919. उसके बाद we start off with खिलाफत movement, that is खलीफा को सपोर्ट करते हुए the Muslims had started the Khalifa movement, his खिलाफत movement. Non-cooperation and खिलाफत was combined. Non-cooperation का मतलब था where Indians will not be, where Indians will not be obedient, they will not be, मतलब कि वो लोग लॉ नहीं तोड़ेंगे बट दे वुड नेवर बी सपोर्टिंग द ब्रिटिश. अगर उनके पास नौकरी है तो वो छोड़ देंगे, इफ दे हैव सम टाइटल्स तो वो उसको वापस कर देंगे, मतलब इन एवरी वे दे विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश, बट दैट वुड बी इन अ नॉन वायलेंट वे. इट वाज अडॉप्टेड अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट. फर्स्ट कोलकाता में इसको प्रपोज किया, देन नागपुर में एक्सेप्ट किया, एंड देन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एरियाज. लेकिन डिफरेंट एरियाज में इसका डिफरेंट जो है कॉन्सिक्वेंस रहा. लाइक इन सिटी लोगों ने शुरू में तो सपोर्ट किया बट दे वर नॉट हैविंग ऑल्टरनेटिव्स, सो दे स्टॉप्ड या फिर आपका स्लो हो गया. इन rural areas it became more violent. In tribal area Alluri Sitaram Raju was killed, and in the plantation again it became very violent. और जब गांधी जी ने देखा कि the people were becoming more violent, तो he was unhappy, और तभी आपका इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा 1922 February. Looking at the violent incident, he withdrew NCM, and he thought कि he will be training the Indians how to fight in a non-violent way. But unfortunately उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर फैक्शंस आ गए, अलग अलग तरीके के, मॉडरेट्स, रैडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट. एंड इनमें जो मॉडरेट से दे वांटेड टू रिमेन इन द पोजीशन एंड फाइट द इलेक्शंस. उस वक्त में जब बॉयकॉट हुआ था तो लोगों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था. ओनली इन मद्रास प्रेसिडेंसी इट वाज नॉट बॉयकॉटेड. Looking at all these, the government, the British, appointed Simon Commission, but it did not have any Indian in that. So when it came to India, it was greeted with the slogan, "Go back, Simon." On the other hand, in 1929 December, Jawaharlal Nehru declared, that is पूर्ण स्वराज, दैट इज इन लाहौर. ये जो चार आपके हैं, फर्स्ट इज कोलकाता, सेकेंड इज नागपुर, थर्ड इज इंडिया सॉरी मद्रास, एंड फोर्थ आपका जो है लाहौर. दीज फोर आर योर मैप क्वेश्चंस. मद्रास का आपका जो है खास कुछ नहीं है, उसमें जो है दे हैड डिसाइडेड अबाउट, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें कितने सोल्जर्स भेजने हैं, एंड देन साइमन कमीशन वाला ये सारा था. देन वी डिड नॉट गेट द independence, but Gandhi ji took salt as a symbol. He started off his iconic salt march, that is Dandi march from Sabarmati to Dandi. He broke the law, and it was the starting of civil disobedience in India. The उस वक्त में जो हमारे the person who was there, Irwin, he went into an agreement, and इस agreement के according Gandhi ji was supposed to go for the second round table conference. Again it was a failure. When he came back, he saw that Congress was still illegal. The people who had been arrested, they were still in the behind the bars, मतलब भी उनको जो है नहीं छोड़ा गया था. And this movement was there. लेकिन इस मूवमेंट जो है वो ग्रेजुअली कम हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय मुस्लिम्स, विमेन, बिजनेसमैन, सबका जो है देखा कि दे वर नॉट गिवन इनफ स्पेस. ऑन द अदर हैंड देयर वर पीपल हु वर uniting the people through songs, through folklores, flag, the image of Bharat Mata, and slowly when people understood that they have to fight for the unity of their country, not for themselves, then ultimately this movement जो है that got into
मोमेंटम. और इसी बीच में आपका हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, विच वॉज डू और डाई, एंड ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, हर तरीके से जो है एवरी वन पार्टिसिपेटेड. एंड अल्टीमेटली British had to go away from our country on in 1947. That is what we assume, that for 15th August 1947 we got the freedom. Even though paper work आपका पहले start हो गया था, but official freedom हम लोगों को मिला था 15th August 1947. So that is what we call as nationalism in India.